मेरी जो डिसेबिलिटी है वो 80% बिलो द चेस्ट है। What initial challenges did you face? मैं स्कूल में जाता था तो वो बच्चे मेरी बुली करके मेरी क्रचिस ले लेते थे और मैं गिर जाता था। धीरे धीरे मेरा समझना हुआ, तब मुझे पता चला कि मैं एक अलग एलियन हूँ। आज मैं कहीं पे भी फेल्ड होके बैठ जाऊंगा तो मेरी अकेली की हार नहीं है, मेरी पूरी कम्युनिटी की हार है। अहमदाबाद से मैं निकला और लंदन में जाके मैंने तिरंगा लहराया। Hello everyone, my name is Kashvi. I am 13 years old and I am a student of Unnati Story House. I am super duper excited to have you all in my podcast, which I would love to call as Beyond Physical Boundaries. Before I start, I want to share a quote with you by Stephen Hawking that says, "My advice to other disabled people would be concentrate on things. Disability doesn't prevent you doing well. And don't regret the things it interferes with." And my guest today has lived with this quote word by word. It gives me immense pleasure to welcome my very special podcast guest, Mr. Sameer Kakkad. Thank you for taking out time from your busy schedule and joining me today. I'm super excited to have you in my podcast. And before I indulge in a conversation, I would take an opportunity to share a short bio of Sameer Uncle, which is not less than an entire inspirational movie. Born in Bhabhar, Banaskantha, he faced life-threatening challenges early in life. When he was just 6 months old, he lost 80% of his body functions due to polio, but survived with obstacles through family support and perseverance. In spite of being physically challenged, his dream was to drive. He just didn't fulfill his dream but also developed specialized car kits for the disabled installed near the steering wheel, approved by Indian authorities. He also runs an automobile club providing education on traffic rules and road safety for the differently able and advocates for easier RTO processes. He also holds leadership roles including National Head of Indian Handicap Association and member of Gujarat RTO community. He is recognized with awards such as the Best Entrepreneur 2017, International Excellence Award and Disabled Achievers of the Year 2010. He has also served as an icon for the Accessible Indian campaign, improving polling facilities for the disabled voters. I am set to unfold his story on how he managed many exceptional achievements in spite of physical challenge. So, here's my first question for you. Uncle, I'm sure your childhood was challenging. I know once you even refused to go to school. So can you please share a bit of your childhood days? मैं बेटा पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने फ्यूचर भारत से आज मैं बात कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई विकलांगता आती है तो हर दिन एक नई जंग होती है। जैसे आपने बताया कि मेरा चाइल्डहुड जो था, जैसे मैं धीरे धीरे मेरा समझना हुआ, तब मुझे पता चला कि मैं एक अलग एलियन हूँ। क्योंकि दुनिया की देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया मेरे प्रत्ये कोई और था कि क्योंकि हर जगह पे मुझे कोई विशेष तरीके से देखता था कि मैं कोई डिफरेंट हूँ। और जब मैं स्कूल में जाता था तो जैसे कि मेरे दोस्त हैं जो हमारी भाषा में, आपकी भाषा में जो बोलते हैं बुली करना, तो मैं जब मेरे स्कूल में जाता था तो तब मैं मेरे क्रचिस और इस तरह से मैं स्कूल में जाता था तो वो बच्चे मेरी बुली करके मेरी क्रचिस ले लेते थे और मैं गिर जाता था और मैं वो डिमोटिवेट हो जाता था कि हे भगवान, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। और मैं अपने घर पे जाता था, मम्मी पापा के साथ बात करता था और उनको बोलता था कि पापा मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे बच्चे बुली करते हैं। तब मेरे पिताजी, पहले मैं पूरा बोलता था वो सुन लेते थे, देन आफ्टर मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा
तू जो ये विश्व में है, ये जो समाज में है, तेरे लिए दूसरा वर्ल्ड नहीं बन पाएगा। तुझे यहाँ पे ही रहना है और यही सबके साथ समझ के यही दुनिया में तेरे को जीना है। और मैं दूसरे दिन से वापस खड़ा हो जाता था और वापस वही स्कूलिंग का दौर चालू। या अंकल, सबको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि किसी के में लाइक लिटरली डिसेबिलिटी होती है, बट पीपल डोंट फील कि उनको लाइक वो स्पेशल है, बट उनको जो मिला है ना वो उसमें खुश है। नॉट जस्ट लाइक अस कि हमें सब कुछ मिलता है बट हम स्टिल इतने खुश नहीं है। या सो लेट मी टेक टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the first time you felt, so what if I have challenges? I too can do what I want to do. जैसे बेटा बताया कि मेरी जो डिसेबिलिटी है वो 80% बिलो द चेस्ट है, मगर छोटा सा था तब से मुझे कार ड्राइव करने का बहुत ही शौक था। और जैसे ही मैं अपनी ये जो ड्रीम है वो किसी को बात करता था तो मेरा मजाक उड़ाते थे। जाहिर सी बात है क्योंकि डिसेबिलिटी होने की वजह से व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकते, बट मैंने अपनी डिसेबिलिटी को मेरे रोड का गड्ढा नहीं बनने दिया। मैंने अध्ययन किया कि कैसे व्हीकल चलाने में दो पैर का क्या काम है। मैंने वो दो पैर के जो कंट्रोल्स हैं उसको हाथ में बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोटोटाइप्स बना के एक ऐसी सुरक्षित किट बनाई कि जिससे मैं व्हीकल चला पाऊं, और मैंने अपने ये ड्रीम को अचीव किया। Wow, that's absolutely amazing. There's a clear gap between dreaming and doing. So when you actually started working on your dream, what initial challenges did you face? बहुत ही जैसे बोला कि किसी भी को डिसेबिलिटी होती है तब हर दिन एक नई जंग होती है। तो मुझे मेरे जो भी ड्रीम्स थे उसमें मुझे आज किसी को भी व्हीकल चलाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस नीडेड होता है। तो मैं इसके लिए कहीं पे भी जाता था तो दिव्यांगजनों के लिए आज ड्राइविंग लाइसेंस होना वो समझ ही नहीं पाते थे। डिपार्टमेंट, आरटीओ ऑफिस, पुलिस डिपार्टमेंट, तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने पड़े कि भाई मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मैं सुरक्षित गाड़ी चला सकता हूँ, उसके लिए मुझे बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने पड़े। बट मेरा एक ही था कि मैं जब तक उसमें हासिल ना करूं अचीवमेंट तब तक मैं शांत नहीं बैठता था। Wow, that's absolutely amazing. Like we are तो like हम तो नॉर्मल है बट हमारे इतनी बड़ी ड्रीम भी पूरी करने वो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि इतनी बड़ी आपने अपॉर्चुनिटी हासिल की। So here is my another question. When things go tough, giving up isn't very easy option for anyone. Have you also ever felt like giving up on your dreams? ऐसा है बेटा कि मैं जो करता हूँ वो उसके पीछे मेरी पूरी दिव्यांग कम्युनिटी है। आज मैं कहीं पे भी फेल्ड होके बैठ जाऊंगा तो मेरी अकेले की हार नहीं है, मेरी पूरी कम्युनिटी की हार है। इसलिए मैं कहीं पे भी फेल्ड हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं हर बार इसको जीतने के लिए, मेरे जो ड्रीम है अचीव करने के लिए हर बार मैं अपने आप को आगे बढ़ाता रहूँगा। छोटा बचपन में का वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप फील करो पूरे दोपहर का 1 बजा हुआ है, पूरी हीट है और हमारे गांव में जो स्कूल थी वो बॉर्डर एरिया, कहने का मतलब 2-5 किलोमीटर दूर होती है गांव में। तो तब मेरे पास वो ट्राइसिकल थी जो चला सके ऐसी, और मैं वो स्कूल पे जा रहा था और वहाँ तब कोई रोड या कुछ ऐसा नहीं था, पूरा जो होता है दलदली और रेत वाला रोड था। तो मैं चला के जा रहा था, मेरी साइकिल फंस गई। तब मैं बहुत ही मेहनत की मैंने, मगर वो साइकिल नहीं निकल रही थी। तो मुझे कोई सामने से आता हुआ पर्सन दिखा तो उसने मुझे बोला कि क्या बच्चा क्या कर रहे हो, मदद करूं? तो मेरा ज़मीर इतना गवारा नहीं कर रहा था कि मैं वो अंकल को बोलूं कि आप मेरे को आके पुश करो। मैंने कहा नहीं अंकल, कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा वो अपने आप बनाने लगा, थोड़ा रिपेयर कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, आप जाइए।
जैसे वो अंकल गए, मैं अपनी साइकिल से उतरा, मैंने साइकिल को पुश किया और मैंने वो रेत में से अपनी साइकिल को बाहर निकाल के मैं स्कूल की तरफ गया। इट मीन्स कि मैं आपको यही कि भाई जिंदगी में जो चैलेंजेस और प्रॉब्लम आती है तो मैं तब कहीं पे मैं सरेंडर होके वो अंकल को बोल देता कि मुझे पुश कर लो, तो मैं एक अपनी ज़िंदगी में जो चैलेंज फेस करने और उसको लड़ने की जो मेरे अंदर की जो क्षमता थी उसको मैं बाहर नहीं ला सकता था। जैसे आपकी भी कोई लाइफ में कोई भी ऐसे कोई चैलेंज आया हो और आपको लगेगा कि मैं नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगी, ऐसा हुआ है आपको कभी भी? हाँ, ऐसा हुआ है वो, मोस्टली इट हैपेंस इन स्कूल। हाँ, बस वही कि मेरे को ये पूरा सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ये पढ़ रही हूँ मगर ये कहाँ पे हो रहा है, इस तरह से। एग्जैक्टली, बस इसी तरह से जिंदगी है, आगे बढ़ना है डट के। वाह, okay, so Yeah. I can move into next question. I'm super excited to know about your drive from Ahmedabad to London and also the mechanism of the car that you drove. So can you please share that story with us? बहुत ही बेटा, जो मेरा जिंदगी का ड्रीम था कि मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे कार रेसर बनना है। अब मैं किसी को भी बोलूं कि मेरे छाती से नीचे का तो भाग काम ही नहीं कर रहा है और फिर भी मुझे कार रेसर बनना है, मगर ये जो जज्बा, ये मेरा जो ड्रीम था उसको मैंने कहीं पे भी सरेंडर नहीं होने दिया। और मैंने जो आपको बताया कि मैंने एक ऐसी किट डिज़ाइन की कि ये किट ये कोई भी आप नॉर्मल व्हीकल में लगाओ तो कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो आसानी से उसको हैंड कंट्रोल करके जो पैर के जो कंट्रोल्स हैं लाइक क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर, वो आपके हाथ में आ जाएंगे और आपके दोनों हाथों से आप गाड़ी का स्टीयरिंग, गियर और एक्सीलेटर, ब्रेक और सभी करके सुरक्षित तरीके से गाड़ी चला पाओगे। और मैंने ये किट बना के, जो मेरा ड्रीम था कि मुझे रेसर बनना है, तो मैंने भारत में नेशनली और इंटरनेशनली इतनी कार रैलियों में पार्ट लिया तो मुझे हाईएस्ट कार रैली चैंपियन इन द वर्ल्ड का भी खिताब मिला। बट यहाँ से मेरी जर्नी स्टॉप नहीं हो रही थी, वो ड्रीम था, मुझे सोने नहीं दे रहा था कि मुझे कार चला के विश्व का भ्रमण करना है। तो मैंने इसमें बहुत बार ट्राई किया लंदन जाने के लिए। इसलिए मेरे को सबसे बड़ा रूट जो कहते हैं कि इंडिया से सबसे बड़ा 17,000 किलोमीटर का रूट जो मेरे लिए लंदन था, तो मैंने बहुत मेहनत की। वहाँ पे भी मुझे तकलीफों का वो सामना करना ही पड़ा कि हमारे गवर्नमेंट में कोई रूल्स ही नहीं है कि दिव्यांगजनों के लिए कोई लाइसेंसिंग हो कि वो बाहर जाके गाड़ी चलाए। तो वहाँ पे भी फाइट किया और एक नया एक्ट बना और मैंने अहमदाबाद से माननीय गवर्नर सर के हाथ से फ्लैग ऑफ करके मैंने अपना जो ड्रीम अचीव करने के लिए मेरी जर्नी स्टार्ट की और अहमदाबाद से मैं निकला और लंदन में जाके मैंने तिरंगा लहराया। Wow, that's truly very much inspirational. Now ask the question. What was your feeling जब आपने तिरंगा लहराया? हाँ बेटा, ऐसा है कि मेरे लिए वो दिन था कि मैं भगवान से बस यही मांग रहा था कि अब इसके आगे तू कुछ नहीं देगी तो भी चलेगा। मैंने तिरंगा सेंट्रल लंदन में 50,000 भारतीयों के सामने तिरंगा लहराया और मुझे गर्व इस बात का था कि जिन्होंने हजारों साल अपने पे राज किया है, आज मैं वहां पे तिरंगा लहरा रहा हूँ। Wow, that's so much nice. सब लोगों का ऐसा होता है कि हमारा एक ड्रीम है पर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम पूरा ही करें, बट आपने जैसे ठाना था कि आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई ड्रीम, कुछ भी हो जाए, वॉट एवर हैपन्स, बट यू डिड इट एंड यू अचीव दिस इनक्रेडिबल माइलस्टोन। इट्स ट्रूली अप्रिशिएटेड। और इसमें भी बेटा मैं थोड़ा ऐड करूंगा कि जैसे ही मैं लंदन जाने के लिए निकला तो लंदन पहुंचने में मुझे इतने सारी परेशानियों का फेस करना पड़ा कि मुझे लगा कि मेरा नया एक जन्म हुआ है। इतनी परेशानियों का भी मुझे फेस करना पड़ा। So can you please share a bit about your challenges that you faced? Sure. बेटा ऐसा था कि जैसे ही इंडिया से मैंने नेपाल के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट की, तभी जो मेरे साथ जो मेरे दूसरे रैली राइडर थे वो मुझे मोटिवेट करने की जगह पे मोटिवेट से ही मेरी फ्लैग ऑफ स्टार्ट हुआ कि मुझे खेल खेल में कहते थे, वो बहुत ही बड़े मुझसे राइडर्स थे,
वो एबल थे और अच्छे अच्छे अचीवमेंट हासिल किए हुए राइडर्स थे। वो कहते थे कि बच्चा पालनपुर तो आ पाएगा कि नहीं, मगर मेरा जो ड्रीम था कि मुझे मछली की आंख दिखती है, लंदन दिखता है। मैं और एक ऐसा भी बीच में वाकया आया कि मैं जो नेपाल से तिब्बत के लिए मैंने अपना ड्राइव चालू किया, तो नेपाल से तिब्बत जाने के लिए सिर्फ 50 किलोमीटर का ही पैच है, मगर उसको मुझे कंप्लीट करने में 16 से 17 घंटे लगे। यानी इतना बर्फ, इतना दलदली, इतना स्लस, हम खुद चल नहीं सकते। ऐसी जगह में से मुझे कार को निकाल के ले जाना था। मौत हर समय, हर पल मौत दस्तक दे रही है। वो फीलिंग से मैं वो अपना जो तिब्बत का जो मेरा ये जिंदगी में जो है कि वो सफर मैंने 17 घंटे में सिर्फ 50 किलोमीटर किए। वो बहुत ही, वो कहने का मतलब वो था कि मत पूछो बात, मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस तरह से ही मैं लंदन पहुंचने में बहुत सारी तकलीफें आई, मगर इसके सामने वो सभी तकलीफें जीरो थी। Oh my God, I don't have words now. It's truly amazing. Thank you, thank you. And like लोग अपने कई लाइक होता है जिसको अपना ड्रीम पूरा करना होता है, बट लोग उनको डीमोटिवेट करते हैं। तो फिर जो जिसको अपना ड्रीम पूरा करना होता है ना, ही और शी इज़ लाइक ऐसा उनको लाइक एक माइंडसेट हो जाता है कि अभी मुझे नहीं करना, बट यू कंटिन्यूड दैट एंड आपने सोचा और आपने वो करके दिखाया। थैंक यू बेटा। और आपके माध्यम से भी मैं यही मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जिंदगी में तो तकलीफें तो आनी है, बिना तकलीफों वाली अचीवमेंट काम की क्या। तो इसका मतलब आप इजी चल रहे हो, मगर आप तकलीफों से डट के आगे बढ़ोगे तो वो आपका अचीवमेंट का एक विजय का एक अलग ही आपके ऊपर एक आएगा असर। Okay, now I can move to my another question. What message you would give to children like us who are yet to follow their path of passion? मैं आपकी तरह जो भी मेरे बच्चे हैं सभी भारत देश के, उनको यही कहना चाहता हूँ कि मैंने जिस तरह से जो तकलीफ़ों में से डट के जीत हासिल की है, आपको भी ज़िंदगी में हर जगह पे तकलीफ तो आएगी, मगर आपको इमीडिएटली कहते हैं कि नासीपात नहीं होना है, अब मैं नहीं कर पाऊंगी। आपको वो ड्रीम को अचीवमेंट करने के लिए आपको एक जो कहते हैं कि भाई एक जो सोते हुए जो सपना आता है और एक वो है कि जो सपना सच करने के लिए हम जागते रहे। इसी तरह से आपकी तकलीफों में भी और या आपके ड्रीम को आगे बढ़ने में कहीं पे भी जो कोई भी तकलीफ आती है तो वो आप जाग के वो सपने को सच कर रहे हो, उसी दिशा में जाना है। तकलीफ तो आनी ही है, बिना तकलीफ की मैं पहले भी बताया अब भी बता रहा हूँ, वो अचीवमेंट का कोई मजा ही नहीं है। सीधे सीधे तो हर कोई चले जाते हैं, वॉरियर ही होते हैं जो तकलीफों से आगे बढ़ के जीत हासिल करते हैं। Wow, that's truly inspirational. हाँ, ऐसा होता है कि लाइक हमें ऐसा होता है कि हम हमारे ड्रीम को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत नहीं झेल सकते, या हमें ऐसे अंदर से एक माइंडसेट होता है कि हमें ये नहीं करना। बट जब लोग हमें डीमोटिवेट करते हैं ना, तो भी हम उसको हासिल करते हैं। उसकी जो अंदर की खुशी होती है ना, इट इज़ लाइक वो बहुत ही अलग और सच्ची खुशी होती है। Exactly. Yeah. Okay. So after these serious questions, let's have some fun and let's move forward the rapid fire round. So after these all serious questions, let's have some fun and let's move forward with a rapid fire round. What makes your journey even more inspiring beyond just the distance? ऐसा है कि मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि मैं पूरे विश्व में एक लौता ऐसा दिव्यांग हूँ कि जिन्होंने विश्व की सफ़र की है और वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, जो आज भी वो रिकॉर्ड कायम है। How did you cross the rivers in your way between? बेटा ऐसा है कि लंदन आपको जाने के लिए 2 से 3 टाइप के रास्ते होते हैं। एक पेरिस से ट्यूब वाला भी है, मगर हमने नीदरलैंड से फेरी लिया था। ये जो फेरी है उसमें आप आपकी गाड़ी को लेके आपको फेरी में बैठ जाना है
और वो फेरी आपको यूके में जेटी पे छोड़ देती है. Okay. What quality helped you achieve this incredible milestone? ऐसा है कि जिंदगी में जो हम कुछ ठानने के लिए, जो अचीव करने के लिए कुछ सोचते हैं, उसको पूरा करने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए. और हर बार कैसे भी थोड़ी सी भी तकलीफ आए तो हमें अपने गोल या विजन से हटना नहीं है, उसको अचीव करने के लिए लगे रहना है. और डैम श्योर आपको विजय मिलेगी. मैं आपके सामने जीवता जागता एग्जाम्पल आपके सामने हूँ. What message does your journey give to people facing difficulties? इसके लिए मैं आपको एक कविता में कहना चाहूँगा कि ए वक्त तूने मेरे पंख जलाए, ए वक्त तूने मेरे पंख जलाए, हौसले मैंने उड़ने के और बढ़ाए. जब जब भी की तूने तूफाए कश्ती, जब जब भी की तूने तूफाए कश्ती, हमने जी भर के पतवार चलाए. जब जब भी किया तूने रुलाने की कोशिश, ये वक्त गवाह है हम जी भर के मुस्कुराए. Wow. What do you think was the biggest challenge during your trip? जैसे मैंने बताया कि हमारा फ्लैग ऑफ हुआ तब से जो हमारे साथ जो दूसरे राइडर्स थे, जो मेरे से बहुत ही बड़े सीनियर बोल सकते हैं, मगर उनको यही था कि ये एक दिव्यांग और इतनी बड़ी रैली में, तो वो मुझे बार बार यही कहते थे, बेटा आगे तक तो पहुंच पाएगा ना बेटा, आगे तक तो. और जब ऐसा हुआ बेटा कि जो मैंने आपको बताया कि तिबेट से इटले नेपाल से तिबेट जाने में जो 16-17 घंटे हुए, तब हर कोई राइडर ने अपनी गाड़ी एक प्रोफेशनल जो होते हैं उनको दे दी कि नहीं आप ये स्लस से निकालो. बट जब वो मेरे पास आए एक्सपर्ट कि आपकी गाड़ी, मैंने तब बोला कि नहीं मैं तो निकाल लूंगा. और इसी तरह से बहुत ही तकलीफ के बाद जब हम लंदन पहुंचे और लंदन में जब हमारा वेलकम हुआ, तब ये जो दूसरी 10 गाड़ी के जो राइडर्स थे उन्होंने आके मेरी व्हीलचेयर को उठा लिया कि नहीं यार तू है दादू, तू है. तो इसी तरह से तकलीफ के आगे तो जीत है ही. वाह, लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें एकदम इजी जाना होता है. हमें कोई भी चीज़ लाइक तकलीफ जब आती है ना, हमें उस तकलीफ को बढ़ा के आगे नहीं चलना होता. कि अब ये कि हमें लाइक इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है, तो वाई शुड वी डू दिस, कि हमें अभी आगे क्यों बढ़ना है. बट आपने वो चीज़ करके दिखाए एंड यू अचीव्ड दिस मच बिग अचीवमेंट. थैंक यू. मुझे भी गर्व है कि आज आपके सामने ये मेरी मन की बातें करने का मुझे ये मौका हासिल हुआ. ओके, व्हाट डज योर जर्नी प्रूव? मेरी ये जो लाइफ है उस पर से एक जो संदेश निष्पलता है कि जो भी आज आपको कहीं पे भी कुछ भी किसी भी टाइप की या तकलीफ या आप ये नहीं कर सकते हो, वो जब आपके दिमाग में जब ख्याल आए तो आपको बस यही है कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ. जैसे कि आपको आपके कुदरत को ऐसा नहीं बताना है कि ए कुदरत मेरे को कितनी तकलीफ है, मगर आपकी तकलीफ को बताना है कि मेरा कुदरत कितना बड़ा है. इस तरह से कोई भी तकलीफ को में से आप हर हमेशा बाहर निकल पाओगे. बस उसको हौसले से और टाइमली उसको वो पार करने की क्षमता से आपके आगे बढ़ना है. आपको गिराने वाले तो बहुत सारे आएंगे, मगर आपको उससे आगे बढ़ना है. हाँ, लाइक मोस्टली ऐसा होता है कि कोई भी लाइक आदमी को जैसे देखते हैं ही इज डिसेबल और कुछ भी, ही और शी इज डिसेबल, बट उनकी जो मेंटल और जो फिजिकल स्ट्रेस होते हैं वो उनके जो वो अंदर के भी स्ट्रेस को वो समझ नहीं पाते हैं. एंड इतनी बड़ी चीज़ हासिल करने के बाद लाइक इट इज़, आई लिटरली डोंट हैव वर्ड्स. इट इज़ वेरी नाइस, वेरी थैंक यू, grateful and appreciable. थैंक यू बेटा.
Okay, so with this rapid fire round, we come to the end of our podcast. Thank you so very much once again being here for me. Your time means a lot to me. So, dear listeners, I am sure Samir Uncle's journey will keep you inspiring to achieve what you want to achieve in your life. And this is Kashvi signing off. Bye.